Hello everyone. Today we will discuss lexicographic utility functions, the favorite topic of Delhi School of Economics. The favorite topic of Delhi School of Economics. आपको हर ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस lexicographic function से मिल जाएंगे. So first we will discuss about its definition, then how to formulate indifference curve, then how to find demand or the optimal bundle, and then the price elasticity of demand. Let's start with definition. So consider we have a two goods economy, good X and good Y, and I'm saying that person A prefers X over Y lexicographically. So what do you mean by this? To understand this, we need to take two bundles, bundle A and bundle B. In bundle A, let's say we have X1, Y1, and in bundle B, we have X2, Y2, right? So in this case, we need to do case by case. Case number one, if X1 is either more than or less than x2 irrespective of y. irrespective of y का मतलब क्या कि हमें y को नहीं देखना अगर x1 या तो ज्यादा है या तो कम है as compared to x2. Let's see how. So let's take case A here. If x1 is more than x2, then the consumer will prefer X1 Y1 bundle, that is bundle A. Case 2 or case B, if X1 is less than X2, then the consumer will prefer X2 Y2. तो इन शॉर्ट हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई भी जिस भी बंडल में हमारा X ज्यादा है हम उस बंडल को प्रेफरेंस देंगे. We will prefer that bundle. हमें उस बंडल से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, right? So let's take an example. Let's say bundle A and we have bundle B. In bundle A, let's say x1 equals to 10 and y1 equals to 5. And in bundle B, we have 9, 15. Now, first we need to compare x. We know that 10 is more than 9. Therefore, in this case, consumer will prefer bundle A because we are comparing only x. Now the question will arise ki sir, what if ki x1 is equals to x2, then what to do? So we need to get into case 2. In this case, if x1 is equals to x2, then we need to compare y. Let's take an example. Let's say we have again bundle A and bundle B. In bundle A, we have x1 y1 and in bundle B, we have x2 y2. So in bundle A, let's say we have 10, 5 and in bundle B we have 10, 6. Now in this case, we have 10 and 10 here. That means same amount of good X. Now we need to compare Y. Since we have 5 here and we have 6 here and 6 is more than 5, therefore in this case, the consumer will prefer that bundle in which he is getting more of good Y. Yeah, in which he is getting more of good y. So this is the definition of lexicographic utility function. अगर आपको फंक्शन बोल रहा है या क्वेश्चन बोल रहा है कि x is preferred over y lexicographically, तो फर्स्ट आपको x को कंपेयर करना है क्योंकि हम x को वेटेज दे रहे हैं ज्यादा. उसके बाद अगर आपका x सेम है तो आपको फिर y को कंपेयर करना है, राइट? सो सिमिलरली गाइस, दिस इज योर होमवर्क. अगर आपको क्वेश्चन ये बोलता कि y is preferred over x लेक्सिकोग्राफिकली, तो आप प्लीज मुझे इसकी डेफिनेशन बताना कि इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू क्या होनी चाहिए. या सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेक्सिकोग्राफिक यूटिलिटी फंक्शन. लेट्स मूव इनटू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व्स. हाउ टू फॉर्म और हाउ टू फॉर्मुलेट इंडिफरेंस curve in the case of lexicographic utility function. Guys, remember one thing. Indifference curve shows different combinations of different bundles where the person is getting same level of satisfaction, right? तो वो सारे बंडल जो कि मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, अगर मैं उन सारे बंडल्स को ज्वाइन कर दूं, उस कर्व को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व. दैट मींस
that curve which will give me same level of satisfaction. अब यही सेम चीज हम लेक्सोग्राफिक के अंदर करने की कोशिश करते हैं और हम इंडिफरेंस कर्व बनाने की कोशिश करते हैं. So guys, in this case, I am starting with a normal bundle. Let's say I am starting with any point here. Call this point as x1, y1. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और पॉइंट या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर कुछ ऐसे बंडल चाहिए सो दैट आई एम इनडिफरेंट टू दिस बंडल. देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में हम ले सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ हियर. सो एज यू नो दैट कि मैंने सीधा ऊपर ले लिया है, वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया है. सो दिस बंडल इज नथिंग बट x2 x1 y1 y2. yeah, why this is x1? Because x1 तो आपका यही है if I'm measuring x here and if I'm measuring y here. So if this is your y1 तो ये आपका y1 नहीं हो सकता, ये कुछ और होगा, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं y2. Now if you compare these two bundles, guys, firstly I am taking this as x is preferred over y lexicographically, right? Now अगर मैं इन दोनों बंडल्स को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे पता है कि वी हैव सेम अमाउंट ऑफ गुड x बट डिफरेंट अमाउंट ऑफ गुड y. तो सीधा मुझे y से कंपेयर करना है. अगर मैं y को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे एक चीज पता है कि मेरा x1, y2 में y ज्यादा है. Therefore, as an individual, I will prefer this bundle. Right? As an individual, I will prefer this bundle, which means that these two bundles are not indifferent. Right? एक bundle इस direction में लेके चलते हैं. Let's say here. Yeah. So we have, let's say now this is your x2. Right? So this bundle is nothing but x2, y2. अब मुझे एक चीज का आंसर दो. आप कंपेयर x1 y1 के साथ ही कर रहे हो. जब आप x1 और x2 को देखते हो तो आपको पता है कि x2 ज्यादा है. Therefore, in this case, consumer will prefer this bundle. Yeah, let's take another bundle here. This is x2 y1, right? अब मुझे एक चीज का आंसर दो. अगेन x2 यहाँ पे ज्यादा है, therefore you will prefer this bundle. अभी तक आपको कोई भी ऐसा बंडल नहीं मिला जो कि इंडिफरेंट हो, राइट? अब एक काम करते हैं, यहां पे कंपेयर करते हैं. लेट्स कॉल दिस x2 y3 and mark this as y3. Yeah. Now again x2 is more than x1, therefore you will prefer this bundle. अभी भी हमें इंडिफरेंट बंडल नहीं मिला है. Let's compare this now. Let's say this is x1 y3. अब मुझे पता है कि we have same amount of x, but y3 is lesser than y1. Therefore, I will prefer this bundle. Again, indifferent नहीं है. यहाँ पे कंपेयर करते हैं and इसको let's say we will call x3. Yeah. So let's call this bundle as x3, y3. मुझे पता है कि हम x1 y1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो x1 ज्यादा है. Therefore, again I will prefer this bundle. Right. Now compare this with this. Call this x3 y1. अब मुझे पता है x1 ज्यादा है, therefore I will again prefer this bundle. Now compare this with this bundle. Let's say this is x3 y2. Again x3 is lesser than x1, therefore I will prefer this bundle. तो मैं सारी डायरेक्शन में मूव कर चुका हूं एंड मुझे कोई भी ऐसे दो बंडल्स नहीं मिले हैं जहां पे मैं बोलूं कि these two bundles are indifferent. मैं इसलिए इंडिफरेंस कर्व को इन द केस ऑफ लेक्सिकोग्राफिक यूटिलिटी फंक्शन, इंडिफरेंस कर्व को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट्स. सिंगलटन सेट्स. सिंगलटन सेट्स का मतलब क्या? अब आपका कर्व नहीं बनेगा, एक पॉइंट ही आपका एक इंडिफरेंस कर्व है. दिस पॉइंट इज योर अनदर इंडिफरेंस कर्व, दिस पॉइंट इज योर अनदर इंडिफरेंस कर्व, दिस पॉइंट इज योर अनदर इंडिफरेंस कर्व. तो इसको इंडिफरेंस कर्व कहना थोड़ा सा गलत होगा बिकॉज दे आर सिंगलटन सेट्स. या एक पॉइंट ही आपका एक इंडिफरेंस कर्व शो कर रहा है. अगर आप इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हो तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं बन सकता. या तो वो आपको पॉइंट ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, लेट्स से दिस पॉइंट, या तो वो कम सेटिस्फैक्शन देगा, लेट्स से दिस पॉइंट. या so this is all about indifference curve. So in the case of lexicographic unit function we have
सिंगलटन सेट्स एज आर इंडिफरेंस कर्व। ये क्वेश्चन 2 बार डीएससी में पूछा गया है, वंस इन 2015 एंड वंस इन 2017, कि लेक्सियोग्राफिक फंक्शंस के इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताओ कि वो क्या होते हैं। या सो लेट्स कम टू डिमांड बंडल और डिमांड optimal bundle. So guys, in this case again we will take the help of graph, right? So आपको पता है कि हमें ग्राफ से कैसे शो करना है, हमें बजट लाइन बनानी पड़ेगी पहले। So this is your budget line. मैं बजट लाइन को एक बार लिख देता हूँ। Let's say my budget line is px into x plus py into y equals to m, right? So this point is nothing but m by px. This point is nothing but m by py. Now टेल मी वन थिंग, अभी तक जब तक आप वेल बी यूनिटेड फंक्शंस कर रहे थे तो आपका ऑप्टिमल कहां आता था? आपका ऑप्टिमल आता था जहां पे बजट लाइन और आईसी टेंजेंट होते थे, राइट? दैट मींस ऑन दी बजट लाइन। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि हम ऑप्टिमल बंडल कैसे ला पाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट व्हिच इज इनसाइड द बजट लाइन। लेट्स कॉल इट पॉइंट ए। मुझे एक चीज का आंसर दो, क्या ए आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है? लेट्स सी। अगर मैं ए पॉइंट से इस पॉइंट तक आता हूं, लेट्स से पॉइंट बी तक आता हूं, सो हमें पता है कि पॉइंट बी विल गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू पॉइंट ए। देयरफॉर ए पॉइंट इज नॉट गिविंग मी हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, देयरफॉर हम यहां पे कंज्यूम नहीं करेंगे। दिस इज नॉट माय ऑप्टिमल बंडल। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या बी पॉइंट व्हिच इज ऑन द बजट लाइन इज गिविंग मी हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन? लेट्स सी। अगर मैं लेट्स से बी पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, लेट्स से पॉइंट सी की तरफ जाता हूं, तो मुझे पता है कि बी पॉइंट पे मुझे x ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू पॉइंट सी, देयरफॉर आई विल प्रेफर बंडल बी नॉट बंडल सी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मुझे बी पॉइंट हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है? अब एक बार हम इस डायरेक्शन में पॉइंट लेके देखते हैं। लेट्स कॉल इट पॉइंट डी। अब अगर आप पॉइंट बी और पॉइंट डी को कंपेयर करें तो पॉइंट डी में यू आर गेटिंग मोर ऑफ गुड x. Since you are getting more of good x in point D, therefore point D is giving you high level of satisfaction. Now, क्या आपको point D highest level of satisfaction दे रहे हैं? Let's see. थोड़ा सा और इधर शिफ्ट हो जाते हैं। Now we know that point E is giving me high level of satisfaction because of more of x. Similarly, point F is giving me high level of satisfaction because of more of x. ऐसे करते करते आप point G तक पहुंच जाओगे जहां पे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। दैट मींस यू आर गेटिंग द कंप्लीट x एंड 0 y। आप पूरा का पूरा इनकम x की कंजम्पशन में लगा दोगे। व्हाई? बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट x इज प्रेफर्ड ओवर y लेक्सिकोग्राफिकली। सो कंज्यूमर को किससे फर्क पड़ता है? कंज्यूमर को ज्यादा x चाहिए, राइट? तो उसको ज्यादा x कब मिलेगा? जब वो पूरी की पूरी इनकम x की कंजम्पशन में लगा देगा। सो इन दिस केस योर ऑप्टिमल बंडल विल बी x which is equals to m by px and y which is equals to 0. In other words, m by px comma 0. This is your optimal bundle. Let's talk about price elasticity of demand. Price elasticity of demand. एक चीज का याद रखना प्लीज, जो आपकी प्राइस इलास्टिक डिमांड है ये एक पर्टिकुलर गुड के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट गुड एक्स, क्योंकि वी आर कंज्यूमिंग ओनली गुड एक्स, राइट? सो पहले आप लिखो प्राइस इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला व्हिच इज इक्वल्स टू चेंज इन एक्स बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय एक्स। यहाँ पे मेजर क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सर इसमें एक्स क्या लेंगे हम? तो गाइस इसमें आप एक्स लोगे जो आपका ऑप्टिमल बंडल है व्हिच इज m by px, right? So in this case, can I write this as dx by dp into p by x, right? So that means आपको पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस फंक्शन का with respect to price. So dx by dpx equals to minus m by px square. Now substitute this, you will get minus m by px square into px by
x equals to m by px. So this is m. Again, this will be px square. You can cut this and you will get your answer as -1. -1 का मतलब क्या? If we increase the price by 1%, then the demand will be decreased by 1%. Right? Negative sign क्या शो कर रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड, दैट मीन्स प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड. बट लॉ ऑफ डिमांड के लिए आप एक चीज प्लीज याद रखना, पहले प्राइस चेंज होता है फिर डिमांड चेंज करोगे. सो इफ वी इंक्रीज द प्राइस बाय 1%, then my demand will decrease by 1%. This is all about price elasticity of demand for lexicographic Euclidean functions.